And Dr. Abnawaz Lodhi is here with us, and he will talk about design and implementation of change. And Dr. Abnawaz Lodhi is an excellent teacher, trainer, researcher. And Dr. Abnawaz Lodhi is currently working as an associate professor at University of Central Punjab, Lahore. Over to you, sir. You can start the session. Okay, Yes. that's perfect. That's perfect. Thank Okay. you so much. Okay, so you can. Okay, audience, in the name of Almighty Allah, the most benevolent, the most merciful, today we are going to discuss a very wonderful topic, designing and implementation of a change. So, audience, Dr. Bilal already introduced me. I'm just going to tell you a little bit more about myself. My name is Dr. Abnawaz Lodi, and I'm Associate Professor at the Business School of University of Central Punjab, Lahore, Pakistan. Uh, I'm also visiting research scholar at the MoMA College of Business, University of South Florida, United States of America. So I have vast teaching, training, and research experience in Pakistan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Turkey, Kazakhstan, Netherlands, Saudi Arabia, and United States of America. My area of interest is business management and information systems, and particularly how to implement the change in the organization. So I have expertise on different quantitative and qualitative data analytical tools and techniques for the quantitative and qualitative data analysis. So I'm expert of NVivo, MaxQDA, Atlas TI, and SPSS, Smart PLS, M Plus, and Mouse software. So I'm also certified trainer of NVivo software. There are only 4 people in Pakistan. I am one of them. So this is the reason that more than 50 universities invited me in different countries, including Pakistan, Malaysia, Philippines, and other countries. So I trained thousands of PhD students and faculty members and professional researchers in different countries. So in 2019, University of South Florida, USA, they invited me. I went there and I trained their foreign professors from different states of America. So similarly, Başakşehir University, Turkey, they invited me and I went there. I trained the people from 23 different countries. Similarly, King Abdulaziz University, Saudi Arabia, they invited me and I trained their team researchers on the Harvard University funding projects. So it was very wonderful training session. Similarly, University of Tara, Malaysia invited me and I trained the PhD students from 35 different countries. So UIB, University of International Business, Kazakhstan invited me and I trained the Russian and Kazakh professors from different universities. So similarly, these are some training and I have a number of publications. I'm also a guest editor of an impact factor journal. Its impact factor is 4.26 and we are going to publish a very wonderful special issue in on qualitative research in hospitality and tourism management. So audience, today we are going to discuss a very wonderful topic, the change management, implementation of change, and first of all, we need to design the change. So this is the outline of the session. आज हम ये डिस्कस करेंगे ये चीज़ें हैं सारी. तो मैंने उसको ये एक आउटलाइन प्रिपेयर की है ताकि हमें पता हो कि व्हाट आर आवर गोल्स, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन. आज के सेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये चीज़ें हमने लर्न करनी है आज के सेशन में. सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज, कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज, चेंज किसे कहते हैं. और नेक्स्ट, देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ चेंज, लाइक द इंडिविजुअल लेवल, बंदों को बदलना, इंसानों को बदलना. दूसरा है टीम लेवल और ग्रुप लेवल चेंज, ग्रुप्स को बदलना, डिपार्टमेंट्स को बदलना, टीम्स को बदलना. एंड द थर्ड इज द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंज. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंज इज द top level change by the top level management
So this is the overall change of the organization, and then we will individually discuss the individual level change, the different approaches of change, like the cognitive approach to change, like the behavioral approach to change the individuals, and then we will also discuss the team level change. I'm going to discuss the Tuckman models for team development and change. So then I will be discussing about the organizational level change, and I'm going to discuss the Ross model, Ross theory for the change, and I'm going to discuss a very wonderful case study of Lahore Electric Supply Company. एक case study भी हम discuss करेंगे इस session के अंदर. So that session which we are going to deliver in this particular time slot, that is a very wonderful, amazing session. So you people will learn a lot, but I will also learn from you people, because sometime we'll go for the interaction of to make this session more interactive. So for the different activities, maybe because we have limited time. So today, as you know, Jummah prayer, we are waiting for the Jummah prayer. So inshallah, I'll try my best to make all the things happen in this session. So audience, we start from the word change. So what do you mean by change? Change का मतलब क्या है? आप में से कोई बताना चाहेगा? जी, you can unmute your mic and in a very respectful manner, एक दूसरे का ख्याल करते हुए मुझे बताएं कि चेंज किसे कहते हैं? जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कुदूस खान स्वामी कॉलेज से सर। वेलकम सर। जी बहुत शुक्रिया सर। चेंज जो है वो हमारी चेंज फॉर बेटरमेंट, बेहतरी के लिए जो हम चेंजेस पैदा करते हैं, अब वो कोग्निटिव लेवल पे हो, डेवलपमेंटल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो या मॉरल लेवल पे हो, लेकिन चेंज जो है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यूज को भी चेंज करता रहता है, कोई कांस्टेंट नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हमने चेंज की ये कांस्टेंट है। आज जो हमने बेहतरी के लिए चेंज की है तो कल हो सकता है कि इससे ज़्यादा अच्छा आ जाए तो हम उसे दोबारा चेंज कर लें। इसमें चेंजेस में कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं और कुछ क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली चेंजेस हैं सर। बिल्कुल ठीक है सर, यू आर वंडरफुल, यू पार्टिसिपेटेड वेरी वेल, आई रियली अप्रिशिएट। सर मैं भी कुछ अर्ज करूं सर? मैं अर्ज करूं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर बताएं। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है मुझे, बताइए। जी प्रोफेसर मुजीब बोल रहा हूँ, साइंस कॉलेज बादल रोड से। जी जी सर। अच्छा, हम जो चेंज को डिफाइन करते हैं ना, ये अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है, बट यहाँ पे एक चीज़ होती है कि लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड डेवलपमेंट। हम यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे ना, चेंज को डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चेंज जो है ना, उसमें हम जो भी एक कोई चीज़ है उसको हम तब्दील करते हैं, अच्छी या बुरी शक्ल में वो चेंज होगी। बिल्कुल ठीक है, अच्छी चेंज भी। मैं भी कुछ गुजारिश करूं सर, डॉक्टर सगीर अर्ज कर रहा हूं सर। जी जी सर। सर किसी ज़मानी या मकानी लिहाज से किसी चीज़ का अपनी पोजीशन को बदलना, वो मेंटल स्टेट भी हो सकती है, वो ज़मानी लिहाज से भी हो सकती है, जोग्राफिकल पोजीशन फ्रेम ऑफ वर्क से भी हो सकती है। पोजीशन के लिहाज से किसी चीज़ का बदलना, माइंड का बदलना या टाइम के लिहाज से किसी चीज़ का बदलना, दैट इज वो जैसे कि मुजीब साहब ने जैसे फरमाया, वो नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आज का नेगेटिव चेंज कल के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, वंडरफुल पार्टिसिपेशन, अमेजिंग। जी, एनीवन एल्स? जी अस्सलाम वालेकुम। Sir, I think this is the stepping up into a new situation by sticking yourself to the original idea. बिल्कुल ठीक है, वंडरफुल, अमेजिंग सर। जी रज़ाक बात कर रहा हूँ सर, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से। जी जी सर। जनरली इसे हम कहते हैं कि चेंज जो है वो जनरली ट्रांजिशन है ऑफ समथिंग और फेज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है कि हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ले सकते हैं, हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, जैसे कि एक सर पहले बता रहे थे कि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। तो जब हम ट्रांजिशन कर रहे होते हैं एक फेज से दूसरी फेज की तरफ या एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, तो दैट इज़ कॉल्ड चेंज। एंड उसमें कुछ चेंज एजेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट रोल मॉडल्स होते हैं, हमारे मेंटोर होते हैं। ठीक है,
जिनको हम फॉलो करते हैं और हम चेंज को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं और वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है किसी भी सिस्टम के अंदर ना। जी बिल्कुल ठीक है सर, वंडरफुल। चेंज एजेंट की आपने बात की, लीडरशिप की बात की कि हाँ who जी, will bring अल्ताफ कमर change। सर, अल्ताफ कमर डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आप जी इजाजत सर, दें। जी जी प्लीज। लर्निंग प्रोसेस में भी सर अगर हम जाएं, अभी हम सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि चेंज जो है कोई फिजिकल चेंजेस है। अगर हम हमारा तल्लक जैसे लर्निंग प्रोसेस के साथ है, तो लर्निंग की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उसमें भी यही है कि लर्निंग इज रिलेटिव परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। बिल्कुल तो ठीक है, हमने वंडरफुल। जो भी हाँ जी, जो सीखने के पहले और सीखने के बाद आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आनी चाहिए। और चेंज का मतलब हमेशा जो लिया जाता है वो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बास वक्त नेगेटिव चेंजेस भी, जो तब्दीलियां होती हैं जो एडवर्स होती हैं, वो भी चेंजेस ही हैं। हम इसके कोई उसमें नहीं देखते। दूसरा सर, रिसर्च में हम जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, तो हम इन टू वेरिएबल्स को ट्राई टू डिटर्मिन द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज। हम किस किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल पैदा हो रहे हैं हम उनकी भी स्टडी करते हैं, तो वो भी चेंज होती है। बिल्कुल ठीक थैंक है, यू सर। वंडरफुल। यानी आप ये कहते हैं कि रिसर्च चेंज पे ही होती है, वेरिएबल्स पे होती है, कांस्टेंट पे नहीं होती। तो रिसर्च के लिए भी चेंज एग्जैक्टली बहुत सर, जरूरी कांस्टेंट जी, वो तो वी आर ट्राई टू डिटर्मिन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल अंडर द है। ऑब्जेक्टिवली एंड स्टैंडर्डाइजेशन से जो करते हैं वो हम चेंज को स्टडी कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज को चेंज करने से क्या क्या वेरिएबल्स में चेंजेस आती हैं। बिल्कुल और ठीक उसके है, साथ यानी बहुत सारे एक्सपीरियंस वेरिएबल भी होते हैं जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको हमें कांस्टेंट करना पड़ता है, और जो स्पेसिफिक चेंज होती है हम उनको स्टडी कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है अस्सलाम सर, वालेकुम वंडरफुल। सर, अल्ताफ कमर वालेकुम बोल सलाम। रहा हूँ, जी सुल्तान से है। तो जी बड़े सर। सिंपली अगर चेंज को देखा जाए तो चेंज इज द वेरी स्पाइस ऑफ लाइफ। टेक्निकली अगर चेंज को ना देखें तो जिंदगी का जो मजा है वो तब्दीली में है। क्या तो बात मैं है तो सर। इसको इस हवाले से देखता हूँ अक्सर। जी सर, थैंक यू सो मच। जी सो अस्सलाम ऑडियंस, वालेकुम। जी जस्ट सिंपली आई वुड लाइक टू ऐड जी जी लास्ट एक टू कमेंट ले लेते हैं जी 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 सर। जी जी लीव द रेगुलर पाथ और रेगुलर अप्रोच एंड टेक अनदर वन, दैट इज क्या चेंज। जबरदस्त है, थैंक यू सो जी मच। डॉक्टर जी साहब जी 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 अस्सलाम वालेकुम। लास्ट कमेंट है जी इसके डॉक्टर बाद। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब इकबाल का एक मिसरा यहाँ बोलना चाहूंगा, सबात एक तगैर को है जमाने में। क्या बात है, सब बात एक तगैर को है ज़माने में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल पार्टिसिपेशन। सो चेंज हमने डिफाइन की कि किसी भी चीज़ के अंदर जो तगैर है, चेंज है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसी भी आगे डिस्कशन है, डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट विल डिस्कस द पॉजिटिव चेंज। तो इंसान की कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव चेंज आए अपने लिए, ठीक है। समटाइम बहुत सारे लोग होते हैं, नेगेटिविटीज़ होती है, हेट होती है लव की बजाय, तो फिर दूसरे लोगों के लिए इंसान भी कोशिश करते हैं कि कोई नेगेटिव चेंज आए, बट डेफिनेटली हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव चेंज करें और दूसरों के लिए भी अच्छे स्वभाव पैदा करें। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे ना, ये भी थोड़ी सी हम पार्टिसिपेशन करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस पीपल आर वेरी चेंज? लोग चेंज नहीं होना चाहते, अपने आप को करना नहीं चाहते, अपने डिपार्टमेंट को नहीं करना चाहते, ऑर्गेनाइजेशन को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को चेंज नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली को चेंज नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को चेंज नहीं करना चाहते, घर चेंज नहीं करना चाहते, जॉब चेंज नहीं करना चाहते, टास्क चेंज नहीं करना चाहते, क्लास चेंज नहीं करना चाहते, कोर्स जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे होते हैं वो चेंज नहीं करना चाहते। तो चेंज जो है वो क्या रीज़न क्या है कि क्यों नहीं करना चाहते चेंज? जी what are the different reasons people are very reluctant to accept the change, or people are very reluctant to bring the change? लोग क्यों चेंज नहीं लेके आते हैं? जी, कैन यू हियर माय वॉइस? जी ऑडियंस, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। Okay, just raise your hands if you can hear my voice. रेज हैंड करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। जी अब आ रही है मुझे, अब आपकी आवाज आ रही है जी। अस्सलाम काइंडली वालेकुम मेरा सर। क्वेश्चन था माइक खोल दो। कि व्हाट आर द रीजंस people are reluctant to bring the change? जी सर ऐसा है कि
कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो इनकलाबी होते हैं, वो हमेशा चेंज के तलाश में होते हैं कि कोई चेंज हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने देखा कि बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत अच्छा कोई होता है, लेकिन वो और किसी अच्छी उससे बेहतर की तलाश में होते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश में होते हैं। सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स ऐसा नहीं है कि चेंज को रेजिस्ट करें। यानी आप ये कहते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं साइकोलॉजिकली। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने, बिल्कुल सही। दैट्स परफेक्ट, थैंक यू सर। दैट्स परफेक्ट। जी, एनीवन एल्स? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर महमूद बात कर रहा हूँ सर। मैं समझता हूँ सर कि रिलक्टेंट होते हैं हम में से बहुत सारे लोग चेंज के लिए, इसके हमारा कंफर्टेबल लेवल जो है वो ख़राब हो जाता है। हम समझते हैं कि जिस सर्कमस्टेंसेस में हम रह रहे हैं, हम उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में जीना चाहते हैं और चेंज को मोस्टली हम रेजिस्ट करते हैं कि हमें वो हमारा कंफर्टेबल लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है चेंज आने से। बिल्कुल तो ठीक आई है। थिंक सो जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कंफर्ट जोन से आप निकलना नहीं चाहते, वो कंफर्टेबल लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डॉक्टर अल्लाह बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप से। जी जी डॉक्टर। सर ये नॉट चेंज के एक रीजन फियर भी है और इसी तरह से स्लीप वॉकिंग भी है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। और कुछ टाइमिंग की इस तरह से सूरत होती है कि इंसान चाहता है कि यार मूव ना ही करूँ, मैं चेंज ना ही करूँ अपने आप में। तो ये फियर है या स्लीप वॉकिंग है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, समटाइम टाइमिंग ऐसे या might be up. We cannot see that change in our broader self interest. तो सेल्फिशनेस भी एक वजह हो सकती है, तो अपने आप को जो है वो कहना कि मैं ही बेहतर हूँ। तो इस वजह से अनलेस चेंज इमीडिएटली पेस ऑफ फॉर अस, तो हम रेजिस्ट करते हैं चेंज को। जी सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कद्दूस खान बात कर रहा हूँ, स्वामी कॉलेज रेलवे रोड से। जी जी सर। सर बड़ी अच्छी दोस्तों ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन से बताई है। मैं समझता हूँ कि चेंज के लिए जो रेजिस्टेंस होती है वो एक्चुअली हमारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, जो हमारे अंदर जो हमारी कमियों को, कोताहियों को, वीकनेसेस को, मैं नए माहौल को फेस नहीं करना चाहता, मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो मैं चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। और हम उसको रेजिस्टेंस देते हैं सर। और दूसरा सर अहम बात जो है, मैं अपने पुराने आइडियाज, अपने एटीट्यूड, अपने बिलीव, अपने तस्सब, अपने रिलीजियस को छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैं इस बात पे हम देखें, हम सब माशाल्लाह मुसलमान और एक्सीडेंशियल मुसलमान है कि मुसलमानों के घर पैदा हो गए। मैं समझता हूँ कि वो शख्स जो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता था, उसने रिलीजियस का मुतालिया किया और वो मुसलमान हुआ, तो उसका बिलीव शायद हम लोगों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर चेंज करने का कंसेप्ट था। हम में से कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ रिलीजियस को स्टडी करते हैं, हम ऐसी जुर्रत करने के बारे में भी नहीं सोचते। और अगली बात सर, एक हमारा इंडिविजुअल अनकॉन्शियस होता है और एक हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो हमारे हजारों सालों का है, और वो हम अपनी उन सारी लाइकनेस को अपने रवैयों के साथ, अपने बिलीव के साथ जिंदा रहने में सिक्योरिटी, कंफर्टेबिलिटी पैदा करते हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम चेंज की तरफ नहीं आते। अगर चेंज करते भी हैं तो उन चेंजेस को करते हैं जो कांगुरेंट है, जो मुझे फायदा देती हैं, मेरे साथ एडजस्टमेंट में है, मुझे उसमें एक्सपर्टी है। जो नॉन कांगुरेंट्स है मैं वो चेंज करता ही नहीं है। और यही वजह है कि इंसान की जो हमारी तरक्की याफ्ता या जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें यही है कि वहाँ चेंज एक्सेप्ट की जाती है, हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक है। लास्ट मुल्तान से चेंज के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज होती है सर, एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन भी अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही कहता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है तो तब जो ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट में है या मूवमेंट में है वो अपनी चेंज लाता है। तो हम सब उस वक्त चेंज के लिए कंपेल्ड हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हम पे असर रखती है। बिल्कुल ठीक है। यानी चेंज जो आती है, आप ये कहते हैं कि वो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी आती है, कोई इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमें भी चेंज खुद को करना पड़ता है। यू आर वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल पार्टिसिपेशन। जी एहसान शेख जी, आखिरी एहसान शेख बोल रहा हूँ। जी जी प्लीज जी कमेंट ले लेते हैं आखिरी। जी
जी एहसान शेख बोल रहा हूँ। जी जी सर। जी अपना डॉक्टर साहब, ये जो चेंज है ना करने की वजह, वो एक अंदाज जो है ना देखे जो अंदेशे हैं, वो लोगों को जो है एक हालत पर रहने पर मजबूर करते हैं। वो चेंज नहीं चाहते, वो चाहते हैं ये चेंज करने से पता नहीं वो पिछले जो जिस पर मैं रह रहा हूँ वो भी ना खत्म हो जाए, वो आके नई चीज को रेजिस्ट इसलिए करते हैं चेंज को कि उनको वो खौफ का शिकार होते हैं। ये जो चेंज है वो जो अब पता नहीं उसके रिजल्ट्स क्या निकले, एडवर्स ज्यादा वो सोचते हैं इस बारे में कि जो चेंज है वो मुझे हो सकता है कि ब्राइट प्रोस्पेक्ट की बजाय कोई ऐसा ना हो कि वो पहली पोजीशन से भी हाथ धो बैठूं मैं। तो ये इसलिए जो चेंज है वो लोग जो है ना तर्जे कोहन पे अड़ना, वो तर्जे कोहन पे अड़ना जो है वो इसी वजह से ही होता है। तो अंदेशे जो है उसको जो खदशात होते हैं उसके अंदर, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। बिल्कुल ठीक है सर, दिस इज वंडरफुल। सो आपकी बात पे कंक्लूड करते हैं डिस्कशन को कि अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर, ओके, आपकी फ्यूचर अनसर्टेन है, गैर यकीनी है, उसके बारे में आपको नहीं पता और उसकी वजह से आप चेंज नहीं करते अपने आप को कि रिस्क बहुत ज्यादा है फ्यूचर के अंदर क्या हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल पार्टिसिपेशन। जी वैसाम सर, लास्ट कमेंट ले लेते हैं, असल में जुम्मे का टाइम हो रहा है, हमने बहुत सारी चीजें आगे डिस्कस करनी है। जी लास्ट ले लेते हैं जी प्लीज। रज़ाक अहमद बात कर रहा हूँ। तो इसमें सर मैं समझता हूँ कि अगर दो चीजें मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड करूँ कि हमारे साथ जो होता है ना सर, कि पहला पॉइंट तो ये है कि वी डोंट थिंक ऑन इट के वी वांट टू चेंज ना, नंबर 1। नंबर 2 के वी देयर आर अटैच्ड विद अस wishes of others, for example particularly our elders, parents, peers, ठीक है, हम कहते हैं कि यार उनकी विश ये है कि मैंने ये करना है। और फिर तीसरी बात मैं छोटी सी ये शेयर करूंगा, वी आर नॉट कर्जियस इनफ, कर्जियस इतने नहीं होते ना, ठीक है, कि हमें ये करना है। तो वो सारी चीजें मिलके जो है ना वो हमें चेंज को एक्सेप्ट नहीं करने देती ना। बिल्कुल ठीक है सर। सो वंडरफुल पार्टिसिपेशन सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट पार्टिसिपेशन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मूव एंड आई जस्ट वांट टू शो यू अ वीडियो। ये एलागोरी ऑफ केव एक बेसिकली थ्योरी है प्लाटो की, सुकरात की, इन्होंने इस पे काम किया और आपको पता है कि ये इन्हीं थ्योरीज की वजह से उनको जहर के प्याले भी पीने पड़े। तो लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया बेसिकली कि जो चेंज है, न्यू नॉलेज है, उस चीज़ को एक्सेप्टेंस की बजाय उन्होंने कत्ल कर दिया और जहर के प्याले भी उनको पीने पड़े। तो ये देखिए एक वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बेसिकली थोड़ा सा ना इस वीडियो का, इस थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये क्या थी कि 3 कैदी थे, ये इसके अंदर वो कैदियों की उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, एक बुक लिखी थी, उसके अंदर ये सारे आर्गूमेंट्स उन्होंने दिए। तो अब वो जो कैदी थे गार के अंदर थे, केव में थे, तो वो बंधे हुए थे जंजीरों के साथ। अच्छा, उनके चेहरे जो थे एक ही सामने वाली साइड पे थे, बिल्कुल सामने वो देख सकते थे, दे कैन नॉट रोटेट देयर नेक, वो अपनी गर्दन घुमा के पीछे नहीं देख सकते थे। अच्छा, होता क्या था कि बैक साइड पे एक आग लगी हुई थी, लकड़ियां जलती थी और दरमियान से ना लोग गुजरते थे, जानवर गुजरते थे उस केव में से, इंसान गुजरते थे। जब वो गुजरते थे तो वो उनको सामने दीवार पे जो शेडो नजर आता था, पीछे बैक पे जो आग की वजह से शेडो क्रिएट होता था इंसानों के गुजरने का, जानवरों के गुजरने का, तो वो यही समझते थे कि रियलिटी यही है, नॉलेज यही है। तो उसमें से फिर क्या हुआ कि एक जो पर्टिकुलर कैदी है, लेट्स सपोज ये सेंटर वाला कैदी, इसकी चेन जो है वो ब्रेक हुई और ये सेंटर वाला कैदी भाग गया। जब ये भागा, केव से बाहर निकला, तो जब बाहर की तरफ आया तो उसको सूरज नजर आया, उसको रोशनी नजर आई। पहले तो उसकी आंखें ही नहीं खुलती थी, फिर उसने ट्राई किया कि मैं इस चीज़ों को देखूं, ऑब्जर्व करूं सराउंडिंग्स को। बाहर आया, फिर उसने जब पानी में देखा तो उसको अपना ही चेहरा नजर आया, शेड नजर आया, जिस तरह आईना होता है, तो पानी में, दरिया में उसको अपना चेहरा नजर आया। उसने लोगों से इंटरेक्शन की, बाकी लोगों से मिला, बाहर दुनिया उसने देखी। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद दोबारा वो केव में आया, गार के अंदर आया, और ये जो बाकी कैदी थे, इन कैदियों को उसने स्टोरी सुनाई। उसने कहा ये देखें, मैं बाहर ये सारी चीज़ें देख के आया हूँ, ये क्या चल रहा है, ये देखें ये चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बाद जब अंदर एंटर हुआ, तो जब उसने ये स्टोरी सुनाई तो उसके अपने ही साथियों ने उसकी बातें को सुनने से इनकार कर दिया, उसकी बातों को बिलीव करने से इनकार कर दिया, बिकॉज वो चेंज ही नहीं करना चाहते थे अपने आप को, नया नॉलेज, नई चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे, नई रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। और उसके बाद जो है वो बस उसी
उन्हीं जंजीरों के साथ वो जुड़े रहना चाहते थे, अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाना चाहते थे, बल्कि उस शख्स को भी उन्होंने दुत्कार दिया, बल्कि इवन के कत्ल कर दिया उनको। तो इस तरह से मतलब कि ये पूरी एक थ्योरी है, पूरा एक आर्गुमेंट है, इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। Okay, this is the analogy, and I discussed. Now I would like to share another video. Gee, audience. So you have learned a lot from this particular video. So people are very unaware about the what is outside of the cave.
केव के बाहर दुनिया क्या है, जो अंदर के लोग हैं वो बिल्कुल टोटली अनअवेयर है। सो जो बंदा उनको वो चीज़ दिखाएगा भी तो वो उसको चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो चेंज लाना, चेंज को इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद चेंज को सस्टेन करना, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो 2 कमेंट इस पे ले लेते हैं वीडियो पे। आप बताएं, अपना माइक अनम्यूट करें, व्हाट यू परसीव द डिफरेंट थीम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। जी प्लीज़। जी ऑडियंस, कैन यू हियर माय वॉइस? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मुजीबुल सलाम साहब, आप बात करना चाह रहे हैं तो करें। नहीं करें डॉक्टर साहब। सर इस वीडियो में पहला मैसेज तो ये है कि हम अपने बिलीव्स को और अपने यकीन को चेंज नहीं करना चाहते। हम उस पर कांस्टेंट है, हम उसे रियलिटी समझते हैं। और जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं उसको तब्दील नहीं करना चाहता। और इसके बाद मैं इस बात पे भी यकीन रखता हूँ कि यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात सर, अगर कोई इनोवेटिव होता है, कोई नई चेंजेस पैदा करता है जो चेंज फॉर बेटरमेंट होती है, हम उसको भी एक्सेप्ट करने में रेजिस्टेंस देते हैं। जैसे वो शख्स एक बाहर चला गया और जब उसने सारी रियलिटी देख ली और उसके बाद वो आके उन्हें बताता है तो उन्हें उसके कबूल करने के बजाय उसे रिजेक्शन देते हैं और उसको फिजिकली, आर्गुमेंटली, कोग्निटिव और बिहेवियरल दोनों तरफ से उसे रिजेक्शन मिलती है और उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो यही हमारी सोसाइटी में आज भी यही हो रहा है सर। और आपने बड़ी एक अच्छी बात की कि सेक्रेटरीज ने जहर का प्याला पी लिया था। सर इसने इसलिए पी लिया था कि वो अपने आइडियाज को, अपनी कोग्निशन को और अपनी थ्योरी को चेंज नहीं करना चाहता था। वो उस पर कामयाब था, अपना कांस्टेंट रहना चाहता था। अगर वो, आपके इल्म में होगा कि उसके जो स्टूडेंट थे वो प्रिंस थे। सेक्रेटरीज 4.5-5 फीट की उनकी हाइट थी, काला रंग था, छोटी छोटी आंखें थी, लेकिन सारा दिन शहजादियों और शहजादों का झुरमुट उनके गिर्द रहता था। उन्होंने उसे जेल से निकाल लिया था और उन्हें कहा था कि उस्ताद मोहतरम आप जाएं। उसने कहा नहीं नहीं, अगर मैं चला जाऊंगा तो जिस रियलिटी को मैं बताना चाहता हूँ, जो उनकी थ्योरी ऑफ आइडिया की बुक थी, रिपब्लिक भी शायद आपने अभी दिखा दिया है, ये प्लेटफॉर्म की थी, तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने अपने लिए नहीं बल्कि बेहतरी के लिए जो मैंने चेंज पैदा की है, मैंने वो एक्सेप्ट करना है। और यही वजह है, वो जो जहर का प्याला सेक्रेटरीज ने पिया था वो जहर नहीं था सर, वो तो अब ही याद था। आज भी सेक्रेटरीज जिंदा है। आज भी हम पीएलटी में ऑनलाइन खान साहब के साथ, लोधी साहब के साथ हम बात कर रहे हैं और सेक्रेटरीज का जिक्र कर रहे हैं। अदरवाइज अगर वो वहां से चला जाता और वो सारा कुछ जो चेंज वो मुतारफ करवाना चाह रहा था उसे खत्म कर देता तो आज सेक्रेटरीज को कोई ना जानता। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। जी एक सेकंड कमेंट ले लेते हैं जी प्लीज। जी सर, चलें ऑडियंस आगे चलते हैं। टाइम भी, जुम्मे की नमाज भी आज पढ़नी है सब लोगों ने। हम बात करते हैं लेविन्स की चेंज मॉडल की। जब भी आप कोई चेंज लेके आते हैं ना, तो उससे पहले उस चीज़ को आपने अनफ्रीज करना है। इंसानों में चेंज लेके आनी है तो उनको उनका पहले ज़हन बनाना पड़ता है, उनको एनवायरनमेंट और वो सारे बेनिफिट्स और वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। अल्टीमेटली आप किसी के अंदर चेंज लेके आएंगे तो वो कन्विंस जब तक नहीं होगा उस चेंज के लिए, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। सो अनफ्रीजिंग बहुत ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ माइंड जो उसका है या एग्जिस्टिंग जो उसकी प्रैक्टिस है, एग्जिस्टिंग स्टेटस को है, उसको अनफ्रीज किया जाए। और जब उसको अनफ्रीज करें फिर आप उसको रीशेप करें, चेंज करें। और जब उसको आपने चेंज कर दिया फिर आप उसको रीफ्रीज कर दें। सो दिस इज़ बेसिकली द चेंज मॉडल। आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए यही डिफरेंट डायरेक्शन में है कि भाई देखें, ये एक पहले उसकी शेप डिफरेंट है, अनफ्रीज किया और आपने उसको चेंज किया और उसके बाद दोबारा से उसकी शेप चेंज करके आपने उसको फ्रीज कर दिया। तो किसी को भी आपने चेंज करना, लोगों को करना, डिपार्टमेंट्स को करना, ऑर्गेनाइजेशन को करना, तो उसके लिए अनफ्रीज करना ज़रूरी है। उसके बाद आप उसके अंदर चेंज लेके आते हैं। अब हमने बात करनी थी कि थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ चेंज पे। इसमें इंडिविजुअल लेवल ऑफ चेंज है, उसमें कॉग्निटिव है, बिहेवियरल चेंज है। इस पे हम बात करेंगे कॉग्निटिव चेंज, कॉग्निशन में चेंज कैसे लेके आई जाए, और बिहेवियर में, लोगों के बिहेवियर में चेंज, उनको चेंज कैसे किया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए ना मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक माँ है, वो बच्चे की ना
जलती हुई कैंडल पे फिंगर लगा देती है, बच्चे का हाथ पकड़ती है और कैंडल जल रही है उसके ऊपर उसकी उंगली लगाती है। बच्चे को बहुत दर्द होती है और वो रोता है, चिल्लाता है, वो कहता है कि मम्मा आप क्या कर रही हो, व्हाट यू आर डूइंग। सो उसके बाद क्या होता है कि वजह क्या होती है वैसे, जलती हुई माँ तो बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से। सो जलती हुई कैंडल पे उस मदर का एक्शन क्यों होता है कि उस बच्चे की फिंगर जो है वो एक कैंडल के ऊपर लगा दे, आग पे लगा दे। तो आग से तो माँ बचाती है, वजह क्या होती है, व्हाट इज द रीजन? जी सर मेरे ख्याल कि व्हाट इज गोइंग टू चेंज, बिल्कुल ठीक है। जी मेरा ख्याल है सर कि उसका मुशाहिदा हो जाए और उसकी ऑब्जर्वेशन हो जाए कि आग जला देती है, तो अगर वो सिर्फ वर्ड से बताती रहेगी कि आग से बचना है और उसे वो ये जला देती है, ये नुकसान पहुंचाती है, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट से गुजारा है उसने, एक्सपेरिमेंट से, एक लर्निंग एक्सपीरियंस से गुजारती है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। यस बिल्कुल ठीक है सर। वो बच्चे के हाथ तो जलते हैं, उसको तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अल्टीमेटली दोबारा वो किचन में आग के पास नहीं जाता। सो जब आप उसके अंदर चेंज लेकर देखिए, इसके अंदर ना कॉग्निशन और बिहेवियर दोनों चीज़ें आ रही हैं। कॉग्निशन किसे कहते हैं? जो माइंड के अंदर आपकी चीज़ें चलती हैं ना, आपके माइंड प्रोसेस है, आपकी परसेप्शन है, या सबसे पहले आप एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ का, आप एक्सपीरियंस करते हैं तो उस चीज़ के बारे में आपकी परसेप्शन क्रिएट होती है, फीलिंग्स आती हैं उसके बारे में, एटीट्यूड डेवलप होता है। ये एटीट्यूड, फीलिंग्स, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर चल रही हैं। इसी चीज़ को हम कॉग्निशन का नाम देते हैं, कॉग्निशन जो आपके माइंड के अंदर है, और उसका जो आउटकम निकलता बिहेवियर आता है। जब बच्चे के सामने दोबारा ज़िंदगी में कैंडल लेके आई जाएगी तो उस कैंडल से वो पीछे पीछे हटेगा, आग आएगी पास तो वो पीछे हटेगा, पीछे हटना उसका बिहेवियर है, क्योंकि उससे पीछे कॉग्निशन थी और कॉग्निशन से पहले पास्ट का एक्सपीरियंस था। तो अल्टीमेटली उसकी सारी ये जो साइकोलॉजी है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसमें कॉग्निशन भी है, बिहेवियर भी, बिहेवियर नाम है एक्शन और रिएक्शन का, कि जब नेक्स्ट टाइम आग उसके पास आएगी तो उससे वो पीछे जाएगा। सो उसको चेंज करने के लिए आपने क्या किया, उसकी कॉग्निशन बदली, कॉग्निशन के अंदर चेंज आया, माइंड के अंदर चेंज आया, परसेप्शन में चेंज आया, फीलिंग्स में, एटीट्यूड में चेंज आया। नेक्स्ट टाइम उस बच्चे के बिहेवियर में भी चेंज आ जाएगा। सो इंडिविजुअल लेवल पे आप जब किसी को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी कॉग्निशन, उसकी सोच भी बदलें। आपने अपने स्टूडेंट्स को चेंज करना है तो अल्टीमेटली आपने उसकी सोच बदलनी है, उसका ज़हन बदलना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कुछ तो आप उसकी सोच बदल सकते हैं कुछ आर्गूमेंट से, एग्जाम्पल से, कुछ सोच आप बदल सकते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो अल्टीमेटली जब उसके अंदर वो चेंज, वो ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। अब किसी की बिलीफ बदलने के लिए कि ट्रुथ ये है या ये है, मसलन देयर आर डिफरेंट एंगल्स। सो ट्रुथ ये है, ये वाला है, या लास्ट पे जो सेंटर में है ट्रुथ वो है, तो क्या चीज़ ट्रुथ है? अगर इसको देखना हो, कन्विंस करना हो किसी को, अगर एक एंगल से वो देखेगा तो अल्टीमेटली उसी को सारी जिंदगी ट्रुथ समझेगा। जिस तरह वो जो कैदी थे वो शैडो को देखते थे और एक ही तरफ दीवार की तरफ उनका चेहरा था और पीछे से जो जानवर और इंसान गुजरते थे, आग और उनके दरमियान में एक जो गुजरते थे, वो तो शैडो क्रिएट होता था, वो सामने दीवार पे उनको नजर आता था, वही रियलिटी, वही चीज़ वो समझते थे कि ये रियलिटी है, यही ट्रुथ है, उससे वो निकलना ही नहीं चाहते थे। तो अल्टीमेटली आपने भी स्टूडेंट्स को निकालना है, उनके अंदर एक चेंज लेके आनी है, पॉजिटिव चेंज। तो जब इंसान किसी की फिलॉसफी या उसका बिलीफ बदलता है ना, तो उसके लिए हम आर्गूमेंट भी यूज़ करते हैं, आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट्स के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्लेम, दूसरा होता है एविडेंस और तीसरा होता है वारंट। अब लेट्स सपोज कि आप सपोज करें कि लोधी साहब आपके साथ गाड़ी में जा रहे हैं, मैं ड्राइवर हूं आपका और आप जनाब अफसर हैं, प्रोफेसर हैं, आप पिछली सीट पे बैठे हुए हैं। सो मैं ड्राइव कर रहा हूं, तो अचानक ही आप मुझे ये कहते हैं कि सर, क्लेम करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप कहते हैं स्टॉप द कार सर, सिग्नल इज रेड, रेड लाइट जली हुई है सिग्नल की, तो आप कहते हैं सर जी किधर जा रहे हैं, गाड़ी रोकें। अच्छा, अब आपने क्लेम किया तो मैंने क्वेश्चन रेज करना है कि वाई आई शुड स्टॉप द कार, भाई मैं क्यों गाड़ी रोकूं आपके कहने पे, या क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, ट्रैफिक रूल्स, आप कहेंगे सर ट्रैफिक रूल्स ये कहते हैं सिग्नल रेड हो तो आपने अपनी गाड़ी रोकते नहीं है। अब मैं सोच में पड़ जाऊंगा, मैं थिंकिंग करूंगा कि यार इफ आई क्रॉस द लाइन एंड ब्रेक द सिग्नल, तो क्या क़यामत आ जाएगी, क्या हो जाएगा?
मैं आगे से आर्ग्यू करूंगा, आगे से जवाब दूंगा। आप क्या करेंगे कि मुझे वारंट के तौर पे, वारंट मीन द एडिशनल एविडेंस, एक एडिशनल एविडेंस देंगे प्रैक्टिकली, मुझे एक्सीडेंट की फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, मुझे फाइन की, फाइनेंशियल पनिशमेंट की, लोगों के घरों में चलान आते हैं वो दिखाएंगे। लाहौर में तो चलान हो जाता है लोगों का, घर के अंदर पर्ची आ जाती है, कैमरे लगे हुए हैं। इसी तरह मतलब कि या वैसे एक वार्डन चलान कर रहा तो किसी ने उसकी फोटो खींची है, तो इस तरह से दिखाएंगे। उससे क्या होगा, मेरी फिलॉसफी चेंज हो जाएगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट भी इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करता है। आर्गूमेंट से भी अगर आपने किसी को कन्विंस करना है तो उसको आर्गूमेंट दे। घर के अंदर एक शोहर अपनी बीवी को चेंज नहीं कर सकता, या बीवी शोहर को चेंज नहीं कर सकती, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। वजह क्या होती है, दोनों एक दूसरे के साथ क्लेम पे बात करते हैं और शाउटिंग करते हैं, क्लेम करते हैं मैंने तुम्हें ये कह दिया पर्दा करो, दुपट्टा सर पे रखो, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब वो क्लेम कर रहा, शाउटिंग कर रहा, वो कहेगी मैं ऐसा क्यों करूं, सारी दुनिया कर रही है, वो आगे से जवाब देगी। अल्टीमेटली अगर बंदे की ये सोच है तो उससे क्या होगा, शाउटिंग होगी, क्लैश आएगा, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, और अल्टीमेटली डिवोर्स तक भी बात किसी इशू पे जा सकती है। तो उसको चाहिए, उसको पास बैठाए उसको कि अल्लाह की बंदी ये देखो, ये एविडेंस है, कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, ये सारे एविडेंसेस हैं, हमने इस पे, वी आर द मुस्लिम, वी आर द बिलीवर्स ऑफ इस्लाम, तो हमने इस पे अमल करना। और वारंट के तौर पे आजकल की जो वीडियोस हैं, चीज़ें हैं, जो ख़वातीन बेपर्दा होकर निकली और जो मसाइल सोसाइटी के अंदर पैदा हुए, और वो सारी चीज़ें वो दिखाएगा उसको, तो उसकी जो फिलॉसफी है आहिस्ता आहिस्ता विद द हेल्प ऑफ सम आर्गूमेंट्स चेंज हो जाएगी। शाउटिंग नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सो ये आर्गूमेंट देखें, आर्गूमेंट की कितनी वर्थ होती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आज़ाद करवा लिया एक आर्गूमेंट की बेस पे। आर्गूमेंट दिया अंग्रेज़ों को, उनको कहा कि मुसलमान और हिंदू अलग-अलग कौमें हैं, क्लेम किया। क्योंकि देखिए जज के आगे ना वकील सारी ज़िंदगी आर्गूमेंट ही देता है, तो वो क्लेम करता है, दावा करता है और दलाइल देता है। सो कायद आज़म भी वकील थे, सारी ज़िंदगी वकालत की, उनके अंदर ये सलाहियत थी। तो उन्होंने क्लेम किया कि भाई ये मुसलमान हिंदू अलग-अलग कौमें हैं। तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त पूछा होगा कि जनाब डू यू हैव एनी एविडेंस कि ये अलग-अलग कौमें, ये तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, एविडेंस दिया कि मुसलमान गाय की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, हिंदू जो है उसको उसकी इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सो दो कौमी नज़रिए की बेस पे कायद आज़म ने आर्गूमेंट किया और क्लेम किया, एविडेंस प्रोवाइड की। तो उस टाइम उन्होंने ये भी पॉसिबिलिटी पूछा हो कि जना कोई आपके पास एडिशनल एविडेंस है कोई ऐसी चीज़, तो कायद आज़म ने पास्ट के जो मुसलमान हिंदू फसादात, आपस में लड़ाई झगड़े जो हुए हैं, उनकी एग्जाम्पल्स कोट की होंगी कि ये देखें ये दोनों कौमें एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, ये प्रैक्टिकली पास्ट में क्या हुआ है, ये इनके लिए अलग-अलग मुल्क की ज़रूरत है। तो एक आर्गूमेंट की बेस पे क्या हुआ कि फिलॉसफी बदल गई, बिलीव बदल गया, और आप पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो गया। तो अब जब हम PhD करते हैं, वी आर द डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। सो हम भी क्या करते हैं, एक आर्गूमेंट प्रेजेंट करते हैं, एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं, या अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं, या एग्जिस्टिंग थ्योरीज को टेस्ट करते हैं, और उसके बाद क्लेम करते हैं कि ये हाइपोथेसिस है, ये रिलेशन है, उसको टेस्ट करते हैं एम्पिरिकल एविडेंसेस से डाटा कलेक्ट करके, और उसके बाद वारंट एडिशनल एविडेंसेस प्रोवाइड करके अपना पूरा आर्गूमेंट बताते हैं। और फिर ऑडियंस की डिफेंस जब होता है, पब्लिक डिफेंस, उसमें फिलॉसफी चेंज करते हैं और कन्विंस करते हैं उनको। अगर उनकी फिलॉसफी चेंज हो जाए कि आपकी कंट्रीब्यूशन है और बड़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है और बहुत इनकलाब आएगा और आपने PhD में वाकई बहुत ज़बरदस्त काम किया, तो उससे क्या होता है कि आपको PhD की डिग्री मिल जाती है। तो आर्गूमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है चेंज लाने के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ऑडियंस, अब हम बात करते हैं आर्गूमेंट के बाद ये कॉग्निटिव अप्रोचेस के हैं। आपने सोच बदलनी है, तो मैंने बताया कि आर्गूमेंट से आप लोगों की सोच बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनका माइंड जो है वो आप आर्गूमेंट से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बच्चे सुइसाइड बॉम्बलर होते हैं वो उनकी ज़ेन साजी वो ऐसी करते हैं कि वो बंदा किसी भीड़ पे, किसी मस्जिद के अंदर, पुलिस की गाड़ी के ऊपर फटने के लिए तैयार हो जाता है। तो बेसिकली उसका माइंड इतना वो वॉश कर देते हैं, तो बातें इस तरह की करते हैं। तो ये बेसिकली सारी गेम है साइकोलॉजी की। सो टीचर जो होता है बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है, उसने भी अपने स्टूडेंट्स को पॉजिटिव, उसके अंदर कॉग्निटिव चेंज लेके आनी है, उसकी सोच बदलनी है, माइंड बदलना है। सो अब इसके अंदर देखें, अगर आप अपनी चेंज, इंसान खुद भी तो अपने आप को चेंज करना चाहता है ना इंडिविजुअल लेवल पे, कि यार मैं अपने आप को चेंज करूं, तो वो कैसे कर सकता है, उसके लिए क्या टेक्निक्स है, ये कॉग्निटिव अप्रोच टू
चेंज है कि इंसान अगर इंडिविजुअल अपने आप को चेंज करना चाहता है, दूसरों को करना चाहता है, आप दूसरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि आप उसको कहें या आप खुद से, जब आप मायूस हैं, बहुत टेंशन में और आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो आप पॉजिटिव लिस्टिंग की टेक्निक यूज़ करें कि अपनी खूबियां लिखना शुरू कर दें। आप जब अपनी खूबियां लिखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर मायूसी खत्म हो जाएगी। यू विल बी फीलिंग गुड। आपका गुड एक्सपीरियंस, आपके गुड रिजल्ट्स, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एरिया ऑफ स्किल्स, आपका नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी रिसर्च, आपके पास इतना सोशल नेटवर्क है स्टूडेंट का, आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, आपके पास घर है, आपके पास गवर्नमेंट की जॉब है। आप जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव लिखनी शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी चेंज की। आपकी कॉग्निशन में चेंज आएगा, थिंकिंग में चेंज आएगा, आपकी परसेप्शन में, आपकी फीलिंग्स के अंदर चेंज आएगा। आप बहुत अच्छा फील करेंगे। पॉजिटिव लिस्टिंग। और अगर कोई किसी दूसरे को हमने चेंज करना है तो आप उसको कि यार अपनी खूबियां लिखें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी सलाहियतों से नवाजा है, कितनी नेमतों से नवाजा है, तो आप इसको लिखें, उसके अंदर चेंज आएगा। दूसरा अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी कोई पॉजिटिव चेंज दें, पॉजिटिव थिंकिंग करें कि यार अटैच करें कि भाई ये आप करना चाहते हैं और ये वाकई आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जब कंफर्म करते हैं कि ये स्टेटमेंट मेरे बारे में है और पॉजिटिव है और ये लोगों को भी पता है कि यार मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, जब आप स्टार्ट करेंगे ऐसा तो अल्टीमेटली आपके अंदर एक कॉग्निटिव चेंज आएगी, पॉजिटिव चेंज आएगी। जिस तरह इसकी एग्जांपल ये है कि आप शुक्र अदा करें, शुक्रगुजारी करें, अल्लाह ताला का शुक्र करें। नो मोर स्ट्रेस, आई एम काम, यार मैं बड़ा जनाब सुकून से हूँ। आई एम रिलैक्स्ड, बड़ा रिलैक्स हूँ, ठीक है। आई ब्रेथ डीपली, सांस ले लंबा, शुक्र अदा करें, ओ शुक्र अल्लाह का, बड़ा ज़बरदस्त मामला है। आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, मैं बड़े सुकून से हूँ। आई एम एट पीस विद वर्ल्ड, दुनिया में बड़ा सुकून है, मैं बड़े सुकून से हूँ। जो बंदा शिकवे करता रहता है ना, वो उसकी कॉग्निशन में प्रॉब्लम होता है, सोच में प्रॉब्लम होता है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहता, वो मायूसी फैलाता है, मायूस करता है, नेगेटिविटी फैलाता है। स्टूडेंट्स को भी कहता है क्या आप पढ़ रहे हैं, ये कोई जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सारी निकम्मे हैं, हमारे इदारे में ही ऐसा हो रहा है, कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल ये करता है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। अब उससे क्या होता है, मायूसी फैलाने से सबसे पहले आपकी कॉग्निशन में चेंज होती है, आप नेगेटिव थिंकर हो जाते हैं और आपकी फीलिंग सारी नेगेटिव होती है दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, ठीक है। उसको चेंज करना, तो आपने कहना आई कैन लाफ, मैं हंस सकता हूँ, लाइफ इज गुड, आई एम इन कंट्रोल, सो दिस इज वंडरफुल, दिस आई एम एट पीस विद द वर्ल्ड। सो इस तरह की चीजें आपने चेंज, अपने आप को थिंकिंग चेंज कर सकते हैं और इसी तरह आप लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स पे। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है आप ना सोचें, जिंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं ना, आप बन गए हैं। आप कहते हैं यार मैंने गोल अचीव कर लिया, मैं प्रिंसिपल बन गया हूँ, मैं वाइस चांसलर बन गया हूँ, या मैंने ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ अचीव करनी है और मैं लेट्स सपोज मैंने कर लिया। अब आप अपने आप को उस पोजीशन पे देखें और उसके बाद सोचेंगे मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा हूँ। जब आप इस तरह से सोचेंगे और अपने आप को उस पोजीशन के साथ विजुअलाइज करेंगे, आंखें बंद करेंगे, थिंकिंग करेंगे कि यार ये तो मैं जो जिंदगी में बनना चाह रहा था मैं तो बन गया हूँ, जो मैं टारगेट अचीव करना चाह रहा था, जिसको मैं सक्सेस कहता था, आज मेरे पास सक्सेस है। सो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आपकी सोच बदलेगी। और इसके बाद है पैटर्न ब्रेकिंग। पैटर्न ब्रेकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं फिजिकली या सिंबॉलिकली उस स्टेज से आप सेपरेट हो जाएं, जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, नेगेटिव लोग हैं, तो उससे आप अपने आप को जो है वो मतलब कि उस फिजिकली उस एनवायरनमेंट से अपने आप को चेंज कर लें और अपना एनवायरनमेंट चेंज करें। सैर व तफरी के लिए चले जाएं, बच्चों को लेके चले जाएं घुमाने फिराने के लिए, और एनवायरनमेंट अपना चेंज करें तो चेंज उसके अंदर आएगी। रीफ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी रिड्यूस करें नेगेटिव फीलिंग्स। जिस तरह आपको ना गिलास आधा ही नजर आता है कि कोई पानी पिला रहा है तो उसको कहेंगे आधा गिलास खाली है, तो अपने रीफ्रेम करें अपनी थिंकिंग को, फीलिंग्स को रिड्यूस करें, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचें और अल्टीमेटली आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगे। एनकोरिंग का मतलब क्या होता है कि अटैचिंग, आप अपने आप को अटैच करते हैं पास्ट फीलिंग के साथ, पास्ट एक्सपीरियंस के साथ। कोई जिस तरह मैं बहुत सारे ममालिक में गया हूँ, जब मुझे कभी स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो मैं सोचता हूँ यार वो जो फॉरेनर, अभी मैं पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा हूँ अमेरिका से, तो वो फॉरेनर जस्ट लाइक माई ब्रदर है भी वो तुर्किश और दूसरा मुस्लिम है और मुस्लिम्स को बहुत प्रमोट करता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है उसके साथ एक अटैचमेंट, इतना उसका नाम है,
यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में फुल प्रोफेसर है और वो मुझे ब्रदर कहता है। तो जब उसकी फ़ोटोज़ उसके साथ मैं देखता हूँ, उसके साथ हमने डिनर्स किए, उसके साथ हमने जो है वो टाइम गुजारा अमेरिका में, तो मुझे बड़ा अच्छी एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। इसी तरह मैं तुर्की गया, उधर भी बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ मीटिंग्स हुई, तो फिर मुझे याद आती हैं वो सारी बातें कि हमने जनाब इस तरह से डिनर्स किए थे, इस तरह हमने सैरो तफरी की थी, ये किया था, वो किया था। तो उससे क्या होता है कि मैं अटैच करता हूँ जब अपने आप को उन इवेंट्स के साथ, तो बड़ा एक पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस है उससे एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है, एनर्जी आती है कि नहीं यार, अगर ये दोबारा से ये चीज़ें हों तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट होगा। ठीक है। सो ऑडियंस, ये तो सारी थी ना कॉग्निटिव के सोच बदलना किसी की, अपनी आपने कॉग्निटिव लेवल पे चेंज लेके आनी है। वो आप आर्गूमेंट से लेके आए, आप पॉजिटिव एक्टिविटी से, ये जो कॉग्निटिव अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोचेस अप्लाई करें, उसकी बेस पे भी आप ला सकते हैं। अब हम चलते हैं बिहेवियरल अप्रोच। अब बिहेवियरल अप्रोच में एक मैं पावलोव का एक्सपेरिमेंटल मॉडल आपसे शेयर करूंगा। किसी का अगर बिहेवियर चेंज करना हो, अगर कोई स्टूडेंट लेट आ रहा है, उसका बिहेवियर आपने चेंज करना है। कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता, लाइक नहीं है ना लाइक है, उसका बिहेवियर आपने चेंज करना है। कोई स्टूडेंट क्लास में आराम से बैठा रहता है, पार्टिसिपेशन नहीं करता, उसका बिहेवियर आपने चेंज करना है। तो आप कैसे उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, इस पे डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो पावलोव की थ्योरी क्या कहती है, इसने एक्सपेरिमेंट्स किए। कैसे एक्सपेरिमेंट किया, इसने कहा कि ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी उसमें आएगी। नंबर 1 पे इसने क्या किया कि जब फूड आता था उसने चेक किया, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलाई दिया, उससे अनकंडीशनल रिस्पांस उसने लिया। तो यानी कि एक उसने इनपुट दी और आगे उसका आउटपुट रिस्पांस दिया, यानी फूड दिखाया, फूड लेके आए वो डॉग के पास, और डॉग को सैलिवेशन होना शुरू हो गई, डॉग के मुंह के अंदर पानी आना शुरू हो गया। देखें उसकी जुबान से कतरे नीचे टपक रहे हैं, सैलिवेशन हो रही है, खाने को देखते ही आपके मुंह में पानी आता। सो ये क्या बेसिकली पहली कंडीशन थी। सेकंड देखें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, बेल बजाई और चेक किया, रिस्पांस चेक किया डॉग का कि उसके मुंह के अंदर पानी आता है, तो नो सैलिवेशन, कोई भी उसके मुंह में पानी नहीं आया। बेल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, खाने के साथ तो समझ आती है। अच्छा, तीसरी उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि फॉर दी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने क्या किया, बेल बजाते थे और फिर खाना आता था, और खाना आता था तो डॉग सैलिवेशन करता था, उसके मुंह में पानी आता था। तो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उन्होंने किया। डॉग को ये पता लग गया कि जब भी बेल बजती है तो खाना ही आता है। तो उसके बाद क्या एक कंडीशन आ गई कि जब बेल बजती थी तो सैलिवेशन होती थी। अब बेल बजने के साथ खाना तो नहीं आया, लेकिन खाना नहीं आता था तब भी डॉग के मुंह में पानी आता था, क्योंकि उसको बेल को खाने के साथ रिलेट करता था। तो किसी का बिहेवियर चेंज करना हो तो इसी तरह आप उसको किसी चीज़ के साथ रिलेट कर देते हैं। ठीक है, रिवार्ड्स के साथ रिलेट करते हैं या पनिशमेंट के साथ रिलेट करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हजरत वो उनका वहाँ पर मज़ार है, उस शक्कर के नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस है, हजरत बाबा फरीद शक्कर गंज रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, उनके बारे में एक वाक़या है कि उनकी वालदा उनको शक्कर की पुड़िया जी शक्कर देती थी कि बिन आप नमाज पढ़ें तो आपको शक्कर मिल जाएगी। ठीक है, सो वो नमाज पढ़ते थे तो जाए नमाज उठाते थे तो शक्कर की पुड़िया उनको मिलती थी। तो उससे बेसिकली उन्होंने प्रमोट किया, बेसिकली वो एक लेसन था कि भाई हम भी बच्चों को अगर मोटिवेट करना चाहते हैं किसी अच्छी चीज़ के साथ तो उसको लिंक कर दें। मैंने एक मस्जिद के अंदर ना रमज़ान की तरावियों में एक बैनर पढ़ा, फ्लैक्स लगाया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे, मोहल्ले के बच्चे अगर इधर नमाज मुसलसल 30 दिन पढ़ेंगे और तरावियाँ पूरी पढ़ेंगे तो इन दी एंड ईद से पहले उनको एक बाईसाइकिल मिलेगी, एक साइकिल मिलेगी, या कोई रिवार्ड उन्होंने मस्जिद के अंदर लिख के लगाया था। तो लोगों ने उस पर क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये वो, इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन मैंने उसको बड़ा पॉजिटिव लिया। मैंने कहा रीज़न इज़ दैट कि देखें इसी वाक़े से मैंने उसको रिलेट किया कि उसकी माँ भी तो उसको शक्कर देती थी कि बिन नमाज पढ़ो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। सो द पॉइंट इज़ दैट कि इस तरह आप किसी का बिहेवियर चेंज करना हो तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होती हैं बहुत सारी चीज़ें। कुछ फाइनेंशियल री इन्फोर्समेंट होती है, आप फाइनेंशियल रिवार्ड्स के साथ किसी बिहेवियर को अटैच कर देते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये फाइनेंशियल रिवार्ड मिलेगा, या आपको आपका नाम हम नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे, या आपका वेबसाइट पे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या आप पब्लिकेशन करेंगे आपको ये फाइनेंशियल रिवार्ड मिलेगा।
आपकी फोटो हम लगाएंगे, पब्लिसाइज करेंगे, ये करेंगे। तो इस तरह से हम किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव भी होती है पनिशमेंट से। तो ये वही एग्जांपल है, पावलोव की जो एग्जांपल है कि देखिए हमने एक डिवाइस लगाई जो रिकॉर्ड करती थी सैलिवेशन, उसके मुंह के अंदर जो ट्यूब थी उससे पता लगता था कि उसके मुंह में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, और ये बजर बजता था, ठीक है, तो ये ड्रम बजता था। ड्रम से क्या होता था कि उसको लिंक उन्होंने कर दिया कि जब खाना आता था तो सैलिवेशन होती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि खाना तो नहीं आता था लेकिन बजर बजता था, बेल बजती थी, तो उसकी बेस पे उसके मुंह में पानी आता था, सैलिवेशन होती थी। तो इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट किए कि अगर किसी का बिहेवियर आपने चेंज करना हो तो उसको किसी चीज के साथ लिंक कर दे, रिवार्ड के साथ लिंक कर दें या पनिशमेंट के साथ लिंक कर दें। पनिश भी करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। कोई लेट आ रहा है, आप उसकी एब्सेंट ना लगाएं, अगले दिन वो बदल जाएगा। या उसको थोड़ा सा आप उसको एहसास दिलाएं कि बेटा आप लेट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ऐसा करना अच्छी बात नहीं, आप टाइम से आएँ। सो अल्टीमेटली कोई आप ये रिवार्ड या पनिशमेंट से बिहेवियर में चेंज आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके अंदर, लर्निंग थ्योरीज हैं कि किस तरह से। डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पेल्फिलोनियन ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, मेरा ख्याल है हम लर्निंग प्रोसेस में है। ये जो पेल्फिलोव था सर, रशियन था। इसकी जो बुनियादी थ्योरी है जो अभी आप बता रहे हैं यही है, लेकिन इसमें उसने दो स्टिमुलस को वाजिया किया था। एक था अनकंडीशनड स्टिमुलाई और दूसरा कंडीशन स्टिमुलाई। उसे वो कहता था यूसीएस और सीएस। अनकंडीशन स्टिमुलस वो स्टिमुलस हैं कि जिनको जब प्रेजेंट किया जाए तो आपके उसका एक रिस्पॉन्स आता है। जैसे फूड देख के सैलिवेशन होती है, जैसे कहते हैं पानी देख के आपको एक भूखे को आती है। उसने क्या किया कि अनकंडीशन स्टिमुलाई को कंडीशन स्टिमुलाई के साथ मल्टी टाइम पेयर किया और आखिर में उसने ये नतीजा निकाला कि जो अनकंडीशन स्टिमुलाई जो रिस्पॉन्स देता है वही कंडीशन स्टिमुलाई देता है। बिल्कुल ठीक है। जब वो बार बार बेल को करता था सर उसके साथ, तो डॉग ने सीख लिया कि बेल में वही खूबियां मौजूद हैं जो फूड में है। तो जब बेल दी जाती थी तो वो ये प्रेडिक्ट करता था कि अब मुझे फूड मिलेगी। एक्चुअली ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सर काम किया गया था। उन्होंने कहा था कि हर लेबर जब काम करती है तो हमें उसे उजरत देनी पड़ती है। हम ऐसा काम क्यों ना करें कि हमें उजरत देने के बगैर वही रिस्पॉन्स मिले जो उजरत देने से मिलता था। ये जब कैपिटलिज्म सर शुरू हुआ तो इसके साथ ये पेल्फिलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग पे ये एक्सपेरिमेंट किया और इसने रीइंफोर्समेंट जो अभी आप बता रहे थे उसकी खास डेफिनेशन भी की कि रीइंफोर्समेंट इज एन इवेंट when it is occur, it is increasing the probability of your desirable behavior। जो आप चाहते हैं वो करेगा। अब बेल बजाते हैं तो कुत्ता वैसे ही सेलिब्रेट करता था जैसे वो फूड के साथ करता था। तो इन्होंने देखिए सर आजकल जितने मेडल्स हैं, हम चाहते हैं जी हम एक स्टूडेंट को ये कहें कि हम तुम्हें 1 साल तुम रेगुलर रहो, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ो और अच्छे नंबर लो, तो हम तुम्हें एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें ये मेरिट सर्टिफिकेट देंगे, जहां तुम्हें 5 मन गंदम दे दें। तो सर मेरा 100% बिलीव है कि स्टूडेंट कहता है कि मुझे वो सर मेरिट सर्टिफिकेट और मेडल दे दें। हालांकि मेरिट सर्टिफिकेट और मेडल उसकी कोई बायोलॉजिकल नीड पूरी नहीं करते जो गंदम करती है। गंदम अनकंडीशन स्टिमुलाई है, लेकिन सोसाइटी में ये साबित कर दिया कि जो अनकंडीशन स्टिमुलाई है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है निस्बतन अनकंडीशन स्टिमुलाई से। सर अगर आप मुझे थोड़ा सा बोलने की इजाजत दें तो मैं एक और बताऊं। इसके आगे भी स्किनर ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग दे दी कि जी उसने रैट पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जी। हाँ एग्जैक्टली सर, उसने स्किनर बॉक्स में उसने ये साबित कर दिया कि हमें तो ये जो बार बार खुराक देनी पड़ती है, डॉग को जब बेल के साथ खुराक देनी पड़ती है तो ये हमारा इन्वेस्ट होता है। उन्होंने कहा नहीं, जब कोई डिजायरेबल बिहेवियर शो करेगा तो हम उसको रीइंफोर्स करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर साहब मैं सलाह करूंगा इसे। 10 मिनट रह गए 1 बजने में और 1:15 बजे हमने इसको खान साहब जो है ना इसे सलाह करूंगा। वो कह रहे हैं कि मेडल मिलेगा तो वो लोग जो है वो इंस्पायर होंगे इससे जी। ठीक है सर। वो गंदम नहीं, वो गंदम वो पैसे वो आप कैश प्राइस रख रहे हैं, गंदम को छोड़े वो कैश प्राइस पे ज्यादा जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सो मच। प्राइजेस तो हमने उसके लिए बड़े से इंसेंटिव रखे हुए हैं, वो तो हमारी तरकीबें नाकाम हो गई हैं। नहीं शेख साहब ऐसी बात नहीं होती। आप जंगल में हो और आपके पास 10,000 रुपया हो और आप भूखे और प्यासे हो, आप वो 10,000 रुपया एक रोटी के लिए दे देंगे सर। ये आपकी जो सारी टोकन इकोनॉमी है ना वो खत्म हो जाती है। नहीं
यही मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज की जिस वक्त जरूरत है, इस वक्त मार्केट में लोगों को वो मेडल की जरूरत नहीं है। मेडल तो हमने ट्रॉफियां जो है हमने वो टेबल सजाए होते हैं, कोई बच्चा आता ही नहीं है हमारे तरफ। मैं मादरत के साथ बात करूँ, अभी हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे थे सर, वी आर नॉट डिस्कसिंग आवर स्ट्रेटेजी। हाँ, वो हम क्लासिकल कंडीशनिंग जो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पेल्फ्लोवियन। आपका अपना पर्सपेक्टिव है और सर का अपना, जी बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है। हम आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं वो क्लासिकल इस लिहाज से है कि वो किताब तो ठीक है, किताब में ये लिखा है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि हाँ यही बात है, लेकिन हमने देख लिया है कि ग्राउंड रियलिटी में हमारे पास जो अपना जो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है, हमने बेशुमार तमगे गोल्ड मेडल ये वो रखे हुए हैं। जज़ाकल्लाह सर, डॉक्टर साहब की बात सुनने दीजिएगा प्लीज, अपनी बात से बात कर लीजिएगा। तो ऑडियंस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टीम लेवल चेंज। अब टीम को कैसे बदलना है, टीम को तो पहले बनाना पड़ता है ना, उसके अंदर फिर जो चेंजेस आती हैं वो आपने देखनी है और उसके मुताबिक चेंज लेके आना है, पॉजिटिव चेंज लेके आना है। अब टीम के अंदर चेंजेस आती कैसे हैं और उसके अंदर आपका पॉजिटिव चेंज के लिए क्या रोल हो सकता है, पहले तो अंडरस्टैंड करें टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। ग्रुप जिस तरह क्लास होती है वही ग्रुप होता है, टीचर टीच करता है और ये देखें सारे स्टूडेंट टीचर के साथ कनेक्टेड है और टीचर के साथ अटैच्ड है, और इस तरह से यानी सेंट्रलाइज्ड कमांड कंट्रोल कमांड अथॉरिटीज मैनेजमेंट है, इसको हम ग्रुप कहते हैं। और टीम किससे कहते हैं, जिसके अंदर हर एक मेंबर दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, तो इसको हम टीम कहते हैं। बहुत अजाइल होती है, बहुत तेज होती है, फुर्तीली ज़्यादा, यानी आपस में कम्युनिकेशन, आपस में लर्निंग, ये सारों की ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हम ना टीम के ऊपर एक टकमैन की थ्योरी है उस पर बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, टीम जिस तरह एक क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है, आपस में सारे कनेक्टेड हैं, लेकिन जो ग्रुप होता है उसमें सारे लोग टीचर के साथ कनेक्टेड हैं। और अब देखिए जो टीम होती है वो भी एक ग्रुप की फॉर्म है, ठीक है, एक ग्रुप की टाइप है। अच्छा, अब इसमें ना टीम फॉर्मुलेशन की टकमैन की थ्योरी की बात करें तो उसने कहा कि इसमें ना 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी जो टीम फॉर्मुलेशन की है। सबसे पहली जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब है लोग अलग-अलग से हैं सारे, कोई किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी की डायरेक्शन इधर है, कोई इधर है, कोई फाइनेंस का है, कोई मार्केटिंग का है, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, कोई साइंसेस का है, कोई बायोलॉजिकल साइंसेस का है। सारों की डायरेक्शन, सारों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सारों की पर्सनालिटी डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप उनको मिला के एक टीम फॉर्मुलेट करते हैं, नोटिफाई कर देते हैं, जैसे प्रिंसिपल ने नोटिफाई कर दिया कि इसकी कमेटी बन गई, एक टीम बन गई है। अब सारों की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है। जब आप फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग पे आते हैं, तो स्टॉर्मिंग आता है। स्टॉर्मिंग का मतलब जिस तरह वो तूफान से, इसकी एग्जांपल के आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि भाई मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम कैसे इस टीम में आ गए हो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, दिल में सोचते हैं यार ये बंदा भी आ गया, अच्छा इसके साथ काम करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, एक आपस में क्लैश डेवलप होते हैं। फिर एक स्टेज आती है, नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको कहते हैं नॉर्मिंग। नॉर्मल सिचुएशन होने लग जाती है, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके अंदर। और उसके बाद फिर परफॉर्मिंग की स्टेज आती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और फिर बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें वो परफॉर्म करते हैं। और लास्ट स्टेज होती है एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग का मतलब होता है सारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और रिवार्ड की स्टेज होती है, यानी जो काम किया है उस पर आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, और उसके बाद फिर आप अलग-अलग होके अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं, यानी अपने अपने फील्ड्स में चले जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से इसको विजुअलाइज किया। फॉर्मिंग के अंदर टीम फॉर्मुलेट हुई, स्टॉर्मिंग में लड़ाई झगड़े, आपस में एक्सेप्टेंस कोई नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, नॉर्मिंग में सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लग गई, परफॉर्मिंग में दे आर परफॉर्मिंग वेल, और एडजॉर्निंग उन्होंने वो टारगेट अचीव किया और आपस में एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए। अब टीम में एक लीडर होता है जिसको हम टीम लीडर कहते हैं, उसका एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है। असल में ये आगे नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग और एडजॉर्मिंग नहीं आ सकता जब तक ये स्टॉर्मिंग के अंदर अगर आपस में क्लैशेस आ रहे हैं उस चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए। इसको मैनेज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बहरहाल यू पीपल आर वेरी एक्सपर्ट पीपल, आप भी इस पे कोई अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि स्टॉर्मिंग जब आती है तो उस पर लीडर का क्या रोल होता है। आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए परफॉर्मेंस जो होती है ना टीम की, फॉर्मिंग पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं टीम का लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस ये है। आप देखें इस पे इस साइड पे कि आपके पास ये लेवल है फॉर्मिंग पे। स्टॉर्मिंग पे क्या होता है, लड़ने की वजह से टीम की इफेक्टिवनेस, उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है। और उसके बाद क्या होता है, नॉर्मिंग पे
सिचुएशंस बहुत नॉर्मल होने लग जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, परफॉर्मिंग पे परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता वो लास्ट स्टेज पे टीम डिसॉल्व कर दिया जाता है, टीम को ख़त्म कर दिया जाता है। किसकी थ्योरी है? टॉकमेंस की। टॉकमेंस ने ये 5 मॉडल स्टेजेस ऑफ टीम फॉर्मुलेशन बताई, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट देखिए ये चेंजेस आ रही है ना, और इसमें चेंज बहुत जरूरी है। तो अगर तो सिर्फ आप स्टॉर्मिंग पे खड़े रहें वो टीम आगे नहीं चल सकती, नॉर्मिंग पे खड़े रहें वो परफॉर्मिंग नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली हमने परफॉर्म करना है और उसको वाइंड अप करना है। तो दिस इज बेसिकली द चेंज इन द टीम। इसके अंदर अब एक लीडर का बहुत एक इफेक्टिव रोल होता है कि जो ये सारी चीजें मैनेज करता है। इसमें ना एक इमरान खान का एक आर्गूमेंट, मैंने उसका एक इंटरव्यू सुना था, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, तो उसका आर्गूमेंट ये था, वो शादी के बारे में एक अपनी डिस्कशन कर रहे थे एक चैनल पे बैठे हुए। तो वो ये कह रहे थे कि जब इंसान की शादी होती है तो जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में चेंजेस आती हैं। ये आपका रिलेशन है, हमने ग्राफ की एक साइड पे रिलेशन लिया और दूसरी साइड पे हमने टाइम लिया। जो जो टाइम गुजरता है उस रिलेशनशिप में चेंज आती है, बिकॉज अब आप लोग एक दूसरे की मियाँ बीवी एक दूसरे की चीज आदतों से, हैबिट से वेल फेमिलियर नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं एक दूसरे की। तो रिलेशनशिप में क्या आता है? डिक्लाइन आता है। तो डिक्लाइन आता है, टाइम के गुजरने के साथ साथ डिक्लाइन आता है, और उसके बाद ये स्टेज आ जाती है, नीचे आ जाती है डिक्लाइन की। तो डिक्लाइन के बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है तो एक दूसरे की बातें और एक दूसरे की हैबिट्स और वो मामलात फिर समझ आने लग जाती हैं, और टाइम गुजरने के साथ साथ फिर रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें सारी चलती हैं। वो ये कहता है, इमरान खान ये कहता है कि मेरा अपना आर्गूमेंट है, थ्योरी, कि ये जो टाइम होता है ये बहुत क्रिटिकल होता है, दिस टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल। इधर जो होता है लीडर का रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है कि अगर आपस में क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो टीम है ना, एक फैमिली टीम है, हस्बैंड और वाइफ दे आर द पार्ट ऑफ टीम। अब उसके अंदर चेंज लानी जरूरी है, और उधर लीडर का रोल होता है, या तो वो खुद लीडर बन जाए, उनमें से एक लीडर बन जाए कि इफेक्टिव लीडर बन जाए जो एक पॉजिटिव चेंज लेके आए, या तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करें, या अच्छे दोस्त, सिंसियर दोस्त रोल प्ले करें। कहते हैं कि अदरवाइज क्या होता है, जिस तरह प्लेन ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, क्रैश हो जाता है नीचे गिर के, ये पॉइंट होता है, रिलेशन जीरो हो जाता है, डाइवोर्स हो जाती है। कहते हैं कि ये जो टर्निंग पॉइंट है, इट इज जस्ट लाइक यू टर्न, के भाई ये यू की फॉर्म के अंदर ये ग्राफ आ रहा है कि आपने टर्न लेना है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली उसका एक आर्गूमेंट था जो मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा ऑडियंस, अब हम लास्ट लेवल ऑफ चेंज की बात करते हैं, विच इज द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंज, जिसमें हमने लेस्को की एक केस स्टडी भी मैंने आपसे डिस्कस करनी है, प्रैक्टिकल केस स्टडी जिसमें मैंने खुद काम किया, मैंने खुद रिसर्च की, और आज उसकी फाइंडिंग्स मैं आपके सामने भी प्रेजेंट करूंगा। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंज पे रॉस का मॉडल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। रॉस के मॉडल की ना थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको बता दूँ। रॉस ने क्या किया, शी वाज अ वेरी गुड क्वालिटेटिव रिसर्चर। उसने इन डेप्थ इंटरव्यू किए किन लोगों के, जो बंदे मौत के करीबुल मर्द थे, वो हॉस्पिटल में चले गए, इल पेशेंट जो कि क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर मुब्तला थे, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उनके पास वो गई, और उनके पास जाके उसने क्या किया कि उनकी इंटरव्यूज की हैं, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज की हैं, और ये माइक बंद करवा दें, लोगों के खुले हुए हैं। 1969 में की, और अपनी स्टडी के बाद यानी उसने तकरीबन अराउंड कोई 1200 लोगों की इंटरव्यूज की है। बहुत बड़ा सैंपल साइज था। क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉर्मली हम इतने लोगों को नहीं करते, चंद लोगों से ही पूरी थ्योरी डेवलप कर देते हैं, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों से मिली, और उसके बाद फिर उसने इन दी एंड अपना एक मॉडल जो है डेवलप किया। ये मॉडल बहुत फेमस है। ये है प्रोसेस ऑफ चेंज के। सबसे पहले देखिए, कहीं भी कोई चेंज आता है, लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है, तो उसके साथ हम इसको रिलेट करेंगे, कॉलेज में चेंज आता है, पहले हम उसकी पर्सनालिटी की चेंज की बात करते हैं। तो कोई भी चेंज आता है ना, ये हमने ग्राफ की एक साइड पे टाइम ले लिया, दूसरी साइड पे सेल्फ एस्टीम ले लिया। आपकी सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उसमें सबसे पहले भी कोई भी चेंज आता है, एक बंदा है उसको पता लगता है कि आपको ना हार्ट अटैक हो गया, आपको शुगर हो गई है, आपको ये मर्ज लग गया, तो सबसे पहले उसकी जो एस्टीम लेवल है ना वो बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम। आप वो कॉन्फिडेंस भी आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और गुस्से से वो कहता है, डिनाई करता है, डॉक्टर को कहता है वो सारे डॉक्टर पागल हैं, मुझे कहते हैं मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मुझे कहते हैं मुझे शुगर हुई है, मुझे शुगर हुई नहीं, मुझे कहते हैं बीपी का मसला, मुझे तो है ही नहीं, डिनाई करता है उस रियलिटी से
डिनाई करता है। उसके बाद क्या आता है, टाइम के साथ उसको पता लगता है, सिम्टम्स जाहिर होते हैं, तो सारे लोग भी उसको कहते हैं, खुद भी वो रियलाइज करता है, एजुकेट होता है, वो कहता है वाकई यार मुझे बीमारी आ गई है। एंगर उसके अंदर आती है, एंगर। इस टाइम पे क्या होता है, सेल्फ एस्टीम उसकी थोड़ी सी नीचे गिरती है, कम होती है, और एंगर बहुत ज्यादा, और यार ये क्या हो गया, मुझे हार्ट अटैक हो गया यार, मुझे तो कभी जिंदगी में मसला नहीं हुआ, मुझे शुगर हो गई है। तो एंगर, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। फिर वो बार्गेनिंग करता है, सेल्फ एस्टीम देखें नीचे आ गई काफी, बार्गेनिंग करता है, किसी भी मजहब से हो वो। तो ये जो जिसने रॉस ने स्टडी की थी, वो कहते हैं मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, बार्गेनिंग करता है। मतलब कि अपने जो जिसको वो मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो उससे वो कहता है कि या अल्लाह एक बार ये बीमारी तो जान छुड़ा दे, या अल्लाह ये बीमारी खत्म हो जाए, मैं इंशाल्लाह नमाजें भी पढ़ूंगा, मैं दाढ़ी भी रख लूंगा, मैं किसी बंदे को बुरा भी नहीं कहूंगा, मैं जनाब हर बंदे के साथ बड़ा अच्छा हो जाऊंगा, ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। लेकिन वो डेफिनेटली ठीक नहीं होता, बीमारी तो लग गई है। और कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं, दुआएं काम आ जाती हैं, वो ठीक हो जाता है दोबारा। अच्छा, अगर वो ना ठीक हो तो ये कंडीशन क्या होती है डिप्रेशन की, वो डिप्रेस्ड हो जाता है बहुत ज्यादा कि यार ये तो टाइम गुजरने के साथ साथ ये चीज उसमें आती है। उसके बाद क्या होता है, उस रियलिटी को वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मैंने जीना इसी रियलिटी के साथ है, उस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आती है, सेल्फ एस्टीम उसकी ज्यादा हो जाती है। आप इस मॉडल को अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई करें, आपका प्रिंसिपल बदल गया सबसे पहले, या कोई बंदा नया प्रिंसिपल बन गया, या कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ गया, या कोई नई चेंजेस आ गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबसे पहले लोग उसको डिनाई करते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या कर दिया, ये क्या नया रूल आ गया, ये क्या मसला बन गया। फिर एंगर शो करते हैं, गुस्सा बहुत आता है, फिर बार्गेनिंग करते हैं, एडजस्टमेंट की कोशिश करते हैं, नहीं होता, डिप्रेस्ड भी होते हैं। फिर उस रियलिटी के साथ वो एक्सेप्ट करके उसको जीना सीख लेते हैं। कोविड की एग्जांपल ले लें, जब कोविड आया तो लोग उसको मानते ही नहीं थे, लोग कहते केरा कोविड, कौन सा कोरोना आया। अच्छा, इस तरह की बातें करते, कई लोग अभी तक वैक्सीन नहीं मानते। तो अब वो फिर एंगर, कई लोगों को कोविड हुआ, फिर बार्गेनिंग भी की, बहुत ज्यादा रोए, सजदे भी किए, या अल्लाह इस बीमारी से निजात दे दे, लोग तो मर रहे हैं, बचत हो जाए। तो डिप्रेस्ड भी हुए कोविड के अंदर, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन की कंडीशन है बहुत एक्सट्रीम पे गई है। फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया, यार कोविड के साथ जीना है, मास्क पकड़ें, सैनिटाइजर यूज करें। तो ये इस तरह से ये चेंज मॉडल जो उसने बताया कि ये चेंजेस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आता है तो ये सारी चीजें होती हैं। अब उसमें ना हमें क्या करना है कि विन विन सिचुएशन पे रहना है। आप कोई चीज एंटायरली चेंज कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन डिफरेंट है, आपके जो कोलीग्स की है, सबऑर्डिनेट्स की है, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, उनके बेनिफिट, स्टेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, आपके डिफरेंट है। तो उसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको एक साइड उससे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर आप उसके साथ मिल के चल सकते हैं, और फिर वो जो गेन है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से वो आप गेन कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट पे हम ना लेस्को की केस स्टडी डिस्कस करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेस्को की केस स्टडी क्या है बेसिकली कि ERP एक सिस्टम होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। इसके ये सॉफ्टवेयर पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है जो सारे डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, सेल्स मार्केटिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, कंपनी में जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स में मॉड्यूल वाइज करते हैं। सॉफ्टवेयर हर जगह पे लगा दिया डिपार्टमेंट्स में, और उसको सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से हमने इंटीग्रेट कर दिया। जब उसको इंटीग्रेट किया, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेट हो गए, कम्युनिकेट करेंगे और आपस में चलेंगे। अच्छा, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने, बाद में IESCO ने किया, फेस्को ने किया, गैस्को ने किया। उन्होंने यही केस स्टडी यूज की और सक्सेस फैक्टर देखे कि उन्होंने ये कैसे इंप्लीमेंट कर दिया, हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको इंप्लीमेंट किया। इसका काम ये होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट कर देना, मिला देना और ऑपरेशन स्मूथ कर देना। अच्छा, इसके ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं, सैप और ऑरिकल, ये सारी कंपनियां पाकिस्तान में जिसमें सैप चलता है, और ये कंपनियां जिसमें ऑरिकल चलता है। तो लेस्को ने ऑरिकल इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, और कब की कोशिश, 2006 के अंदर उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने कहा ये इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं 2006 में, और क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन करेंगे डिपार्टमेंट्स में। और जितने लेस्को के 91 अकाउंटिंग यूनिट्स हैं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के, तो वो सारे जितने भी जगह जगह पे हर इलाके में लेस्को का ऑफिस होता है, सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे क्वींस रोड उनके हेड ऑफिस के साथ, और इस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग होगी, और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम चलेगा।
उन्होंने इसको प्लान कर लिया। अब वेंडर सेलेक्ट किया जाफर ब्रदर्स, और 2006 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने शुरू कर दी। वेंडर ने क्या किया, लोगों को ट्रेन किया और ईआरपी इम्प्लीमेंट कर दिया, ईआरपी इंस्टॉल कर दिया, नेटवर्किंग कर दी, चल पड़ा सारा सिस्टम। अब उसके बाद क्या हुआ, अगला जो स्टेप है वो बहुत, ये देखें बहुत बड़ी चेंज आई है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की हम बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी चेंज आई पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने नया सिस्टम ईआरपी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। 2008 में 2 साल बाद क्या हुआ, एक मीटिंग हुई जिसके अंदर सीईओ बैठे, हेड्स बैठे, सारे टीम बैठी सारी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने ईआरपी को फेलियर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा ईआरपी फेल हो गया। उन्होंने यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट लिया, यूजर रेडी नहीं थे। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे, वापडा से लेस्को में आए हुए थे। उन्होंने कहा पुत्र मेरी रिटायरमेंट ही 2 महीने रह गए ने, मैं की ईआरपी सीखना। तो कोई भी बंदा सीखने के लिए तैयार नहीं था। यूजर को कहा ईआरपी पे बैठ के काम करें। उन्होंने कहा सर जी सानते माउस ही नहीं फड़ना आंदा। तो माउस उनको चलाना नहीं आता, सिस्टम को शट डाउन करना चलाना ही नहीं आता, क्या करें। कनेक्टिविटी का भी इशू था। उन्होंने कहा हेड ऑफिस के साथ सारे डिपार्टमेंट इंटीग्रेट करने हैं, नहीं हुए इंटीग्रेट, क्या करें, बड़ा मसला आ गया। तो उसमें उस टाइम पे आबिद लतीफ लोधी साहब थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खप डाली इसमें 2008 में कि भाई आपने ये बड़ा गलत काम किया, इसको आपने इम्प्लीमेंट किया, ये ठीक नहीं हुआ, यूज़र की एक्सेप्टेंस ही नहीं है और प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही हैं। तो मैं आपको ना वो शख्स दिखाता हूँ कि आबिद लतीफ लोधी कौन था और फिर कैसे ये सारा सिस्टम चला। अच्छा, अब उसमें 2008 की बात है कि इस पे उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ईआरपी जो है वो पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन ये सिस्टम फेल हो गया, ये नहीं ठीक इम्प्लीमेंट हुआ। ये देखिए सेंटर में जो साहब है इनका नाम है आबिद लतीफ लोधी, ठीक है, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसने कन्विंस किया आबिद लतीफ लोधी ने चीफ एग्जीक्यूटिव को कि यार ईआरपी ठीक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फेल की तरफ चला गया। तो सीईओ ने कहा कि आप ही इसको इम्प्लीमेंट करें। जब कोई देखे ना कोई बंदा एतराज करता है तो उसी से कहा जाता है कि यार आपको, आप कहते हैं तो इसकी री इम्प्लीमेंटेशन चले आप ही करें, आप लीड करें इसको, आप करके दिखा दें इसको ठीक इम्प्लीमेंट। तो इस प्रोजेक्ट की दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई 2008 से 11 तक, इसको दोबारा से री इम्प्लीमेंट किया गया और लर्न किया उन्होंने पहली मिस्टेक से, जो पहले मिस्टेक्स हुई थी उससे उन्होंने लर्निंग की। अच्छा, आगे देखिएगा क्या हुआ कि बहुत सारे लर्निंग एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए। इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने इंटरव्यूज किए इन लोगों के और मैंने चीज़ें आइडेंटिफाई की, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें थी, क्या ट्रुथ थे, कुछ फैक्ट्स इस केस स्टडी के मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। वो ये थे कि जब ईआरपी इम्प्लीमेंट हुआ तो लेस्को यूनियन जो थी उन्होंने कहा कि हम इसको इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देंगे। ये नया सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट हो गया, तो उन्होंने बैनर्स लगाए। ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उन्होंने बैनर्स पे लिखा एम्प्लॉय रिमूविंग प्रोग्राम, कि एक ऐसा प्रोग्राम है कि जब जैसे इम्प्लीमेंट होगा सारे एम्प्लॉयज रिमूव हो जाएंगे, हमें तो नौकरियों का खतरा हो गया। तो इतनी बड़ी चेंज को हम कैसे एक्सेप्ट करें। यूनियन आ गई, बैनर्स चलाए, आग लगाई, असम्बली हॉल के बाहर बैठ गए, प्रोटेस्ट किया उन्होंने। अब जब लोगों की गाड़ियां गुजरती थी, मैं एक शख्स को जानता हूं जिसका नाम है नेमतुल्ला। ये मैं आपको उसके ना जूम करता हूँ, उसकी फोटो दिखाता हूँ नेमतुल्ला की। मैंने इनका इंटरव्यू किया। नेमतुल्ला साहब कहते हैं कि सर जी ऐसा हुआ कि एक दफा मैं गाड़ी लेके जा रहा, जैसे ही मैंने असेंबली हॉल क्रॉस किया तो बाहर वो धरने में बैठे हुए थे सारे, ब्लॉक करके ईआरपी नामंजूर, ईआरपी नामंजूर। और उसी टाइम उन्होंने मेरी गाड़ी को घेरा डाल लिया और उसके बाद मेरे पास आके ईआरपी को गंदी गंदी गालियां निकालनी शुरू कर दी कि हम नहीं मानते, ईआरपी ये है तो ईआरपी वो है। और कहने लगे कि वो डंडे भी थे उनके पास और मैंने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लिया कि करीब था कि वो मेरी शीशे गाड़ी के तोड़ देते और फिर मुझे निकालते, मुझे भी तोड़ते, पिटाई करते। कहते हमें इंस्ट्रक्शन थी कि आपने कोई रिएक्शन नहीं करना। हमने रिएक्शन नहीं किया और उसके बाद क्या हुआ कि वो बाकी लोग आ गए, उन्होंने कहा नहीं यार हमने तोड़ फोड़ नहीं करनी, बैठो, पूरा एहतजाज करते हैं। तो वो उनको लेके यूनियन वालों को साइड पे चले गए। तो कहने लगे लॉक था, बल्कि लेस्को सारा, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कितनी बड़ी चेंज को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सिस्टम हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। तो मैंने जब इंटरव्यूज किए, डाटा कलेक्ट किया, केस स्टडी लिखी इस पे लेस्को पे, तो उन्होंने कहा कि जब हम ट्रेनिंग करवाते थे ये स्टाफ को, ठीक है ना, ट्रेनर सारे ये ट्रेनिंग करवाते थे, तो उस ट्रेनिंग में हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि बहुत सारे लोग ये बोलते थे
कि भाई हमने तो ERP सिस्टम की आप बात करते हो, अकाउंटिंग की बात करते हो, तो आपकी एज कितनी है? तो ट्रेनर कहता था मेरी एज 25 साल है। तो वो कहता था बेटा 35 साल तो मुझे हो गए हैं इधर इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए, आप हमें सिखाएंगे, हमें बताएंगे? वही बात है ना, वो उसकी थ्योरी की केव थ्योरी जो हमने डिस्कस की है कि नया नॉलेज वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, चेंज के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं थे। और उसके बाद ये देखें, ये सारी टीम थी जिन्होंने ट्रेनिंग करवाई, ये सारी टीम थी और इन्होंने मिल के काम किया, इम्प्लीमेंट किया, यंग पीपल जो नई टेक्नोलॉजी से वेल अवेयर थे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कन्विंस किया। आबिद लतीफ़ लोधी साहब खुद कहते हैं कि मैं 11 बजे तक रात को बैठ के उनके साथ काम करवाया करता था। और फिर मैंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जिस बंदे को कंप्यूटर शट डाउन करना या माउस पकड़ना चलाना आ गया ना, उसको ERP आ गया। ERP की डेफिनेशन हमने ERP लर्निंग की ये बना ली थी, जिसको कंप्यूटर ऑन करना बंद करना आ गया, उसको ERP आ गया। उन लोगों को हमने मोटिवेट किया, दिन रात उनके साथ हमने काम किया। पहले ट्रेनिंग ये हुई थी कि मल्टीमीडिया पे बताते थे ये ERP की एंट्री ऐसे डालनी है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने इन्वॉल्व किया हमें, ट्रेनिंग क्या हुई, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सेशन हुए, प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर हमें सिखाया गया काम। तो फिर क्या हुआ, 2011 में ERP उन्होंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया। इस सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के पीछे जो केस स्टडीज लिखी गई, इन्होंने फिर सारी केस स्टडी लिखी, पब्लिसाइज किया, सिनर्जी के नाम से अपना न्यूज़लेटर निकालना शुरू किया और अपनी सक्सेस को ना डिस्प्ले करना शुरू किया। एक कैमरामैन रखा, जब वो इफ्तिताह करते थे एक नए डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंटेशन का, उसका वो रिबन कटिंग सेरेमनी करवाते थे, कैमरामैन फोटोग्राफी करता था और उसके बाद उसको वो पब्लिसाइज कर देते थे। तो इससे क्या होता था, एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट हुआ, ERP आ गया, ERP आ गया। और उससे फिर उन्होंने जो टीम थी उसको भी उन्होंने मोटिवेट किया, सारी टीम को। और जो इंटरनल एक टीम थी और एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट की टीम थी, तो उनको भी मोटिवेट किया। सैयद अजहर इकबाल साहब जो थे, ये थोड़े तरल्ले वाले बंदे थे, सख्त बंदे थे। इनकी एनर्जीज को पॉजिटिव उन्होंने यूज किया स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पे। जो बंदा ERP पे काम नहीं करता था, ये आके उनको सख्ती से कहते थे कि आप ERP पे काम करें। लेकिन फिर भी सख्ती किसी जगह पे चली, ज्यादा मोटिवेशन चली, एनकरेजमेंट चला, टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटमेंट थी, इन्वॉल्वमेंट थी, सारी चीजें थी, फिर जाके ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ। सैयद अजहर इकबाल जो है वो ये क्या लिखते हैं अपनी जो कोटेशंस है, वो कहते हैं कि देयर आर 7 वंडर्स इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में 7 अजूबे हैं। they are all related with the ancient time, सारों का ताल्लुक पुराने जमाने से है। Is there any wonder of this age, क्या इस दौर का भी कोई अजूबा है? Yes to me, ERP financial implementation is the 8th wonder of this world। ठीक है ना? तो इस तरह से उन्होंने कहा ये नामुमकिन था, अजूबा था जो हमने मुमकिन कर दिखाया। टीम मैनेजमेंट थी, टीम के साथ हमने काम किया, लोगों को माइंडसेट चेंज किया, लोगों में चेंज किया, उनको एजुकेट किया, एक्सेप्ट करवाई वही टेक्नोलॉजी। फिर इन्होंने एक पॉजिटिव जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कराया। वो क्या करवाया कि इस न्यूज़ लेटर के जरिए हर महीने के एंड पे वो 10 बेस्ट एम्प्लॉयज डिक्लेयर करते थे ERP के, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है, या ऑफ द ईयर। तो ये बेस्ट कौन थे? बेस्ट ERP यूजर्स उन्होंने डिक्लेयर करने शुरू कर दिए। और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने बाद में बेस्ट परफॉर्मेंस शो कराई, लेकिन इनिशियली वो बेस्ट नहीं करते थे। इनमें से यूनियन के लोग भी थे। तो उससे क्या हुआ कि जब इनकी फोटो आती थी बेस्ट परफॉर्मर की, तो उससे भी रेजिस्टेंस कम होती थी। एक बंदा सबसे मुखालफत कर रहा है ज्यादा, उसी की फोटो वो दे देते थे। तो उससे क्या इम्पैक्ट आता था कि यार वो ग्लेजी पेपर पे ये जब छपता था न्यूज़ लेटर, मुलायम पेपर पे, तो उसको अपनी फोटो नजर आती थी और कहता था 26,000 लोगों के पास, लेस्को में जो एम्प्लॉयज है उनके पास ये जा रहा है, मेरी कितनी पब्लिसिटी हो रही है। उसका खून भर जाता था कि यार मुझे तो बेस्ट एम्प्लॉय डिक्लेयर कर दिया और मैं ही मुखालफत करता हूं। तो इस तरह की चीजों को उन्होंने यूज किया पॉजिटिव सिनर्जी के लिए। अल्टीमेटली करते कराते एक बहुत बड़ी जो चेंज की पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की उन्होंने इंप्लीमेंट की और पूरी कंपनी को उन्होंने बदल के रख दिया। अब जो ERP सिस्टम है लेस्को में चल रहा है, इट इज वेरी सक्सेसफुल एंड दे आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम। इस पे मैंने एक रिसर्च की, हमने डाटा कलेक्ट किया, क्वालिटेटिव रिसर्च की सक्सेस फैक्टर पे। इस पे पूरी मेरी स्टडी या आर्टिकल अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्री इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, उसमें मैंने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फाइंड किए थे, डाटा कलेक्ट किया, ये NVivo सॉफ्टवेयर यूज किया, क्वालिटेटिव रिसर्च करके ट्री मैप एनालिसिस किया, वर्ड क्लाउड्स निकाले और ये उसकी डिफरेंट स्टेजेस पे प्री इम्प्लीमेंटेशन पे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, सक्सेस फैक्टर इम्प्लीमेंटेशन पे फाइंड किए और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन पे फाइंड किए और ये उसका एनालिसिस किया, ट्री मैप एनालिसिस किया। सो ये मेरी रिसर्च की सारी फाइंडिंग्स थी, इस पे मैंने काम भी किया और ये कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं
और जो रिसर्च करने के बाद, और उसके बाद कुछ सक्सेस फैक्टर भी आइडेंटिफाई किए थे. So audience, this is all about from my side, and thank you so much for attending my session. And audience, this is your time. If you have any question, you can unmute your mic and you can ask. Thank you so much.